السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کا نکاح کیسے ہوا؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور لائک کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا جیسے یہ اس کائنات کی شروعات تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی، یعنی پیدا کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک راجدوت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی شروعات جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے قلم پیدا کیا اور اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب یعنی طریقہ ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کی دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنایا، زمین کو سہارا دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دیے۔ اس سے زمین ٹھہر گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے۔ منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثیم یعنی کیٹانو اور بیماریاں بنائی۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کو زمین میں چوپائے یعنی 4 پیروں والے جانور بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ اور پھر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی سکھ سویدھاؤں کے لیے زمین اور اس پر ضروریات کی تمام چیزیں پیدا فرما دی تھی، یعنی مخلوق کی شروعات میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب لڑائی جھگڑے ہوئے اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کے سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام اجازیل تھا اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقت میں کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ جنہوں میں انسانوں جتنی عقل اور سمجھ نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنہوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقصد تھے۔ پہلا یہ کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔
वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन के रंग के मुताबिक ही जाहिर हुई। कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ काले और कुछ उसके बीच इस मट्टी को पानी से भिगोया गया तो ये 3 बन गई। कुरान मजीद में कुछ जगहों पर इंसान की तख्लीका के लिए तुर्राब का लफ्ज आया है, यानी कि सूखी मट्टी, और कुछ बार 3 का लफ्ज आया है जो कि भीगी हुई या तर मट्टी को कहते हैं। जब पानी को मट्टी से भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस मट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीका फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में ढाला। उसके बाद एक खास वक्त तक उसको छोड़े रखा, यहाँ तक कि वो गीली मट्टी सूख गई और उसका रंग काला हो गया और उसमें से बदबू आने लगी। फिर वो सूख करके खनखनाती मिट्टी बन गई और आखिर में आग पर पकी हुई मट्टी की सूरत इख्तियार कर ली, यानी आग में पकी हुई मिट्टी जैसी बन गई, जिसे कुरान पाक में फखखार कहा गया है। इस मिट्टी के लिए और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, जैसे हुमायून यानी काली मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मट्टी, सलसाल यानी खनखना कर बोलने वाली मट्टी। तख्लीके आदम अल्लाह का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाले लोगों के कद घटते चले गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया है। बहरहाल, जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे सूखने के लिए एक खास वक्त तक छोड़े रखा तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो इस ढांचे को बजा कर देखते तो उसमें से ऐसी आवाज आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती है, और उसने देखा कि ये ढांचा पेट वाला है तो वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ तो वो घबरा गए, और इब्लीस भी ढांचे के आसपास से गुजरता तो ठोकर मारकर कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता। और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर हावी किया गया तो मैं इसे खतरे में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर हावी किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूंकी थी। तब से इब्लीस की इंसान से अदावत की। जैसे ही रूह उस बनाए हुए ढांचे में सर की तरफ से डाली गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उनकी आंखों ने जन्नत के फलों को देखा तो गौरो फिक्र करने लगे। फिर रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की जरूरत महसूस हुई, यानी रूह अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी गई तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त यानी पीठ मुबारक पर हाथ फेरा, जिससे कयामत तक आने वाले तमाम इंसान बाहर आ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई। ये बात कुरान और अहादीस से भी साबित है। फिर अल्लाह ने औलादे आदम से उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम इंसानों ने जवाब दिया कि हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंक कर फरिश्तों और जिन्हों से इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के अलावा सब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया? तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से, जबकि मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ताला ने उसकी घमंड पर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे दीजिए, यानी कि इतनी लंबी उम्र दे दीजिए
कि कयामत तक मुझे मौत न आए जबकि तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे एक फिक्स टाइम तक मोहलत दे दी गई। फिर इब्लीस ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से उनके पास आऊंगा और तू उन्हें शुक्रगुजार हरगिज नहीं पाएगा सिवाय उनके जो तेरे सच्चे बंदे होंगे और वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने उसे जलीलो ख्वार करके वहां से निकाल दिया और फरमाया कि उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा मैं ऐसे तमाम लोगों से जहन्नुम को भर दूंगा और मेरे बंदों पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरह यह साफ हुआ कि सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसलिए उलमा ए इकराम के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर यानी घमंड है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में पूरी रूह डाल दी तो वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में उन्होंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शुरू ही में सभी नाम सिखा दिए। वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान और जमीन की हर चीज का नाम और उनका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों का नाम जब फरिश्तों से पूछा तो वो इन चीजों के नाम नहीं जानते थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीजों के नाम बताए। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर एक रोज जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हमसफर बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूं। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कयामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थीं। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम दोनों जन्नत में रहते थे। उन्हें नूर का लिबास पहनाया गया। जब इब्लीस ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने जिस दरख्त के पास जाने से उन्हें मना किया था, शैतान ने उन्हें वहीं खाने पर मजबूर कर दिया और उस पर झूठी कस्में भी खाईं। उन्होंने इस दरख्त से खा लिया और अल्लाह ताला के नाफरमानी के जिम्मेदार भी हुए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का वो लिबास ले लिए और वो बहराना हो गए। वह इस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। लेकिन इस गुनाह के बाद गुरूर और तकब्बुर की जगह वो अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे और उसकी मगफिरत के तलबगार हुए। इससे ये बताया गया कि खता इंसान की फितरत का हिस्सा है क्योंकि वो फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तमाम जमीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। फिर वो दोनों जमीन पर उतरे और उन्हीं के साथ इब्लीस भी जमीन पर उतरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से माफी के कलमात सीखे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में जबकि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दह में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान अराफात में उनकी मुलाकात हुई। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। सबसे पहले जोड़ा काबिल और उनकी बहन कमीन का था। इस तरह जमीन पर नस्ले इंसानी की बढ़ोतरी शुरू हो गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने हजरत आदम को जुम्मे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको जाहिरी जमीन की एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया। इसीलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ उससे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त यानी पेड़ बनाया गया। जैसे कि हजरत मौला अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप की मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत बीबी हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज की, ए आदम ठहर जाएं, पहले इनका मेहर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका मेहर क्या है? फरिश्ते ने अर्ज की, इनका मेहर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर 3 या 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आपका हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर मौजूद चीज के लिए वसीला है, यहाँ तक कि अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबूवत मिलनी थी उनकी शख्सियत, उनकी उम्र हजरत आदम के सामने क्लियर कर दी गई। आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह पाक, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दो। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता किए, हाबिल और काबिल। लेकिन शैतान के वसवसों की वजह से जब काबिल के हाथों हाबिल कत्ल हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाले हैं जिसके नसब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुंचेंगे। उनका नाम शीस रखना। शीस का मतलब है कि अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा। और यूं अल्लाह ताला ने आदम की नस्ल को जमीन पर भेजा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं जन्नत का फल खाऊं। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढने लगे। अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा के लिए जन्नत का फल ढूंढने जा रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। तमाम बेटे दौड़ते हुए आपके पास पहुंचे। आप बिस्तरे बीमारी पर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। बस इतने में मौत का फरिश्ता आन पहुंचा। जैसे ही हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने मौत का फरिश्ता देखा तो हजरत आदम से लिपट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हव्वा, मुझसे दूर हट जाएं। एक मर्तबा पहले भी आपकी वजह से जन्नत से निकाला गया हूं। आज अल्लाह और उनके फरिश्तों के बीच आड़ ना बनो। फिर आप उन फरिश्तों से कहने लगे, ए फरिश्ता, ए मौत, क्या भूल तो नहीं गई? मैंने अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है। अभी तो मुझे 960 बरस हुए हैं। मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 बरस आपके पोते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई। आपको गुस्सल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपकी जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज़े जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। जमीन खोदकर आपकी तदफीन हुई और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज हुआ कि जब भी किसी का इंतकाल हो उसके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी उन फरिश्तों की सुन्नत पर ईमान वाले अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेकर बहुत से अलग अलग राय है। कुछ के नजदीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका के, कुछ के नजदीक जबले अभी कैस और कुछ के नजदीक इराक। कुछ रिवायतों में ये भी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता पहुंचा तो आपके बेटे, जिसको आपने अपना जानशी बनाया था, हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मेरे जानसी, मैंने अल्लाह से सुना था बहुत ही जल्द इस जमीन पर एक तूफान आएगा। अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती में सवार करना जो निजात का वसीला है।
اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو تو آپ اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کریں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام